ऑफ प्रॉपर्टीज में लद्दाख यूटी को गया, लेकिन जो सेक्टर 17 में एक और स्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पास है, वो फिलहाल हमारे पास ही है। उसको मॉडिफाई करके वहाँ जो परमिशन वगैरह लेके वहाँ कमरों का इंतजाम होगा, ताकि जो भी पेशेंट्स वगैरह उनको वहाँ जगह की जरूरत होगी वो वहाँ जगह पा सकेंगे। मोहम्मद अकरम सर AQ 1220 Minister in charge youth service and sports. AQ number 1220. Honorable Speaker, sir, Khelo India scheme is a central sponsored scheme of Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, which is based state-wise and not a constituency-based scheme. No project has been sanctioned under Khelo India scheme at Draba, Mastandra near BDO office, Baflias, and the department has no intimation from revenue authorities regarding acquisition plan. Part B. At present, there is no proposal with department for construction of indoor stadium in every block. However, department has constructed one sports stadium at Surankot, one play field at Charala Fazlabad in Surankot constituency with following facilities: one construction of modern pavilion with inbuilt sound system, Charala Fazlabad for a cost of rupees 31.22 lakhs. Two, filling of RBM construction of gate at Playfield Charala Fazlabad for a cost of rupees 13.75 lakhs. Three, chain link fencing and leveling of Playfield at Charala Fazlabad for a cost of 20.47 lakhs. Four, sports stadium at Surankot has been completed for a cost of rupees 243.41 lakhs with following facilities: pavilion, change room, gender-based toilet for boys and girls, synthetic volleyball court, synthetic basketball court, synthetic badminton court, concrete practice pitch, and borewell for drinking water. Part C. The volleyball court in Sports Stadium Surankot has been completed during the current financial year 24-25. Coaching facility to the youth will be provided to the players by the department and establishment of kabaddi centers subject to availability of resources. Part D. Rehbre Khel policy issued by government order number 141 EDU of 2017 dated 27/10/27 provides for the regularization of Rehbre Khel in a staggered manner on completion of 7 years of satisfactory and continuous service against the available created posts of physical education teachers. The vacancies as shall accrue to the department shall not be filled up but shall be kept reserved for regularization of the Rehbers. इसमें सप्लीमेंट्री ये था, ये तो ठीक है, मैं जो भी जवाब है अच्छा है। मैं ये कह रहा था ये जो स्टेडियम और हमारा जो प्ले फील्ड है ये एक ही जगह में है, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि क्या कहीं और जगह जैसे बफलियाज जो है ये पीर की गली से लेकर सर नीचे बड़ा इलाका है और वहाँ मेरी कंस्टिट्यूंसी के अंदर वहाँ ड्रग्स का बड़ा इशू है ज़बरदस्त। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आने वाले मिनिस्टर साहब से, क्या आइंदा आगे फ्यूचर में क्या आप कहीं प्ले फील्ड जो है मेरे जैसे खनेतर में है या किसी बफलियाज में बनाने की कुछ है आपकी तैयारी? यही मुझे ऑनरेबल स्पीकर सर, जैसा कि ऑनरेबल एमएल साहब ने बोला है, हम जिस दिन आने वाले दिनों में वहाँ का टूर बनाएंगे वो मौका भी देखेंगे और जो आपके हिस्से में प्ले फील्ड्स आएंगे 2-4 जैसा कि हमारी बात हुई है तो उसको जरूर उसका निर्माण करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर सजाद सिफी 1157 Sir, EQ number 1157. Party, sir, department is making significant and sustained efforts to address the ongoing issues of vacancy of medical officers, which presently stands at approximately around 550 posts. It's important to highlight that the selection process for 181 medical officers post is still underway with the Jammu and Kashmir Public Service Commission. Once the selection are received, the appointed doctors will be assigned to health institutions experienced severe staff shortage. In addition to this, the department is also in the process of operating the wait list for 91 selected medical officers. These selectees will be deployed to underserved areas across the Jammu and Kashmir, further strengthening healthcare delivery which is most needed. Specifically regarding District Baramulla, the following table outlines the present block-wise staff status, including the sanctions strength in the positions and vacancies. Patan, Sopur, Tangmarg. Additionally, it is noteworthy that out of 365 recently appointed medical officers, 39 have been posted to District Baramulla. This deployment aims to address the ongoing vacancies and enhance the healthcare infrastructure in the region. Furthermore, to strengthen healthcare service in District Baramulla,
additional 11 staff members from NHM and 71 from Rashtriya Bal Swasthya Karyakram, including doctors and paramedics, have been deployed to the district Baramulla. This additional manpower significantly bolstered the healthcare delivery capacity, ensuring more comprehensive coverage, particularly in the underserved areas of the state. सर जैसे कि उन्होंने ब्रेकअप दिखाया हुआ है सर, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में 29 पोस्ट जो है मेरे उड़ी में है, जिसमें 13 पोस्ट जो है वो अभी भी खाली हैं सर डिपार्टमेंट जब अपॉइंटमेंट करता है सर, मेरा ये एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले पीएससी में जब डॉक्टर्स आते हैं सिलेक्शन के लिए, उनको ये बताया जाए कि आपको फार फ्लंग एरियाज में पोस्ट होना है सर। वो अपॉइंटमेंट हो जाती है उनकी, और जब उनकी पोस्टिंग होती है तो वो आके वहां ज्वाइन नहीं करते हैं सर। अभी भी जो वेट लिस्ट है वो पिछले 4 महीने से वेट लिस्ट जो है वो अभी तक वो जो है उसका जो ऑर्डर्स नहीं निकले हुए हैं सर। मेरी आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि उस वेट लिस्ट को जल्द से जल्द जो है वो ऑपरेशन किया जाए, ताकि जो डॉक्टर्स हैं हमारे फार फ्लंग एरियाज में आ सकें, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे जो लोग हैं फार फ्लंग एरियाज में सर बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। बारामूला के बारे में क्वेश्चन है, उससे बाहर नहीं पूछने दूंगा सर। जवाब सुन लीजिए मिनिस्टर साहब जवाब। सर जैसे कि आप ऑनरेबल एमएलए साहब ने कहा कि बारामूला में जो है टोटल सैंक्शन नंबर जो मेडिकल ऑफिसर्स की है 275 है, उसमें से 219 जो है डॉक्टर्स इसमें प्लेस है। कमी है इसमें, इसीलिए डिपार्टमेंट कंप्लीटली कोशिश में है कि नई रिक्रूटमेंट हो जाए और जितनी जल्द हो जाए उतना अच्छा है, ताकि ये जो हमारी कमियां हैं फार फ्लंग एरियाज में, जैसे गुरेज है, जैसे ओडी है या और भी एरियाज है, तो कि वहां पर फुलफिल किया जाए। बारामूला के बारे में पूछिए, उसके अलावा मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे सर प्लीज सर, डॉक्टर्स का बर्निंग इशू सिटीज, टाउन्स, म्यूनिसिपैलिटीज में डॉक्टर अस्पतालों में डॉक्टर्स की तादाद एक्सेस है, ज़्यादा है, जबकि फार फ्लंग एरियाज में डॉक्टरों की कमी है। फार फ्लंग एरियाज में डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं सिटी, टाउन्स या म्यूनिसिपैलिटी में रहने के लिए। क्या डिपार्टमेंट फार फ्लंग एरिया में जो एक्सेस डॉक्टर्स आपको सिटी में है, म्यूनिसिपैलिटीज में है, वो टाउन्स में है, उनको वहाँ से निकाल कर दूर दराज इलाकों में भेजें। मैं अगर अपने इलाके की बात करूँ सर, करालपोरा मेरा एसडीएच है डॉक्टरों के बगैर, त्रेगाम पीएचसी डॉक्टरों के बगैर, केरन के सीएचसी डॉक्टरों के बगैर, नगरी की पीएचसी डॉक्टरों के बगैर, ये हाल है। और फार फ्लंग एरियाज के डॉक्टर प्रेफर करते हैं सिटीज में रहने, लेकिन वो तो रहेंगे जब तक ना गवर्नमेंट कोई एक्शन लेंगी उन डॉक्टर्स को वहां से निकाल कर फार फ्लंग आपका आ गया ज़्यादा मुबारक साहब, क्या पूछ रहे हैं? सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ये सवाल जो है इसमें जो हमारे डॉक्टर्स जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं डॉक्टर्स, उनको पहले अपने इलाकों में सर्व करना चाहिए। वो आते हैं सिटी में, एक तो ये इसमें पॉलिसी बनना चाहिए, जो रिजर्व कैटेगरी में कोई डॉक्टर अपॉइंट होता है उसको 4-5 साल अपने लोकल टीम में काम कर। एक दूसरी बात, जो हमारे डॉक्टर कपल है, एक उसकी हस्बैंड कुपवारा में, बीवी अनंतनाग में, एक पॉलिसी बनाना चाहिए जहाँ डॉक्टर्स कपल हो उनको एक ही जगह रखे, नजदीक रखे, उससे वो टाइम भी दे सकते पेशेंट को, उनकी घर की फिक्र भी। सर पूछना नहीं है, मेरा क्वेश्चन है हेल्थ का ही, बारामूला का, इसी के साथ क्लब कर दिया जाए सर। क्या है वो, क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर है 564 सर। है क्या क्वेश्चन? ये हेल्थ रिलेटेड है सर, हेल्थ का ही है, जरा पढ़ लीजिए ना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नंबर 564। इसमें कुछ पीएचसीज के बारे में मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है, उसी पे उसको इसके साथ क्लब कर वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के बारे में, बारामूला का यही क्वेश्चन है। पूछिए सवाल, क्या पूछना? ऑनरेबल मिनिस्टर सर, क्वेश्चन नंबर 564। नहीं आपका सप्लीमेंट्री क्या है? मेरा सप्लीमेंट्री ये है सर कि जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है ये उस इंफॉर्मेशन से नहीं मिलती है जब मैं पीएचसीज पर या जहां मैं गया हूं, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें और इसमें एक वाज़ेह फर्क है। अब मैं सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन, 2 पॉइंट्स हैं। पहला ये कि जो बारामूला जो मैंने इंफॉर्मेशन मांगी है, जो ये हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका स्टाफ इन्होंने लिखा है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, ये पॉइंट नोट किया जाए कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हमने इन सेंटर्स का स्टाफ
जो है वो दूसरी जगह भेजा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवाब अफसर ये मुझे दे रहा है कि ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स आपके अस्पतालों से स्टाफ दूसरे अस्पताल में भेजा गया है। तो जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में अस्पताल हैं वो ह्यूमंस के नहीं है कि यहाँ से ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे आप दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा मेरी ये है कि सराकवारा में सबसे पुराना PHC है उस वक्त का, और वो उस वक्त के शहीद गुलाम रसूल भट्ट साहब ने एस्टेब्लिश करवाया था। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि जो उसका स्टाफ इन्होंने अटैच किया है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स में रिक्वेस्ट करता हूं कि उसको डिटैच करके उस PHC में वापस भेजा जाए। तो इन दो पर मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का जवाब चाहूंगा। सर जहां तक सजाद साहब ने कहा, मेरे ख्याल से पूरा उसमें कंप्रेहेंसिव जवाब मिला है इनको। और एक कंसर्न है पूरे हाउस का सर हेल्थ के बारे में सर। और मैं आपको बताता चलूं सर, चूंकि ये पूरे वैली में जितने भी इंस्टीट्यूशंस है फार फ्लंग एरियाज में, सबकी ही रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी जो स्ट्रेंथ्स वो कंप्लीट होनी चाहिए। अब ह्यूमनली पॉसिबल इसलिए नहीं होता है कि हमारे पास इतना मैन पावर नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, जिसकी वजह से कहीं कहीं हमें दिक्कतें आती है। मगर जो डिपार्टमेंट है वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि जितना जल्दी हो सके जितने भी सिलेक्शंस हमारी डॉक्टर्स की है या पैरामेडिक्स की है फार फ्लंग एरियाज में उनको प्लेस करें। जहां तक जावेद साहब का ताल्लुक है सर, क्या होता है सर, कहीं पर हमारा कोई स्पेशलाइज होता है, कोई डॉक्टर जो स्पेशलाइज होता है वो किसी PHC में होता है कि वहां उसकी जो यूटिलिटी है वो वेस्ट हो जाती है। उस जिम्मेदारी में कहीं कहीं कभी क्या होता है सर, उसको उठाकर या CHC में उठाते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगाते हैं, अटैचमेंट होती है ताकि उसकी यूटिलिटी वहां पर हो जाए, क्योंकि वहां का फुटफॉल ज्यादा होता है। उस जमीन में अगर ऐसी कोई स्पेसिफिक है मैं देख लूंगा सर, आई विल एंश्योर यू कि इंशाल्लाह रहमान वो हम ठीक करेंगे। मैं अपने सवाल पे समय पे नहीं आ पाया, मेरा कोई डिस्प्यूट नहीं। 7 दिन का सेशन है, 19 का पेंडिंग है। योर सेक्रेटरी इज बाइस्ड, आपका सेक्रेटरी बाइस्ड है। यू डोंट वांट टू अलाउ मी टू पुट अप द पब्लिक क्वेश्चंस। आपका सवाल लगा था लेकिन आप हाजिर ही नहीं थे, तो क्या करें? तो सर यहाँ पे इतना बड़ा जाम लगा है। सवाल तो लगा था, हाँ लगा था आपका। आई एम ए ह्यूमन बीइंग सर, एक सवाल लगा ना, 19 पेंडिंग है। सब पूछे सवाल, आप पूछे। आपका दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। जरा नो एनी कमेंट्री। आप सुन लीजिए नहीं मेरी बात। आपका क्वेश्चन नंबर 2 था लेकिन आप हाजिर नहीं थे, तो मैं क्या करूं? हाँ सलाचा साहब पूछ लीजिए। AKO नंबर 1325, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। Number 1325. There are 76 schemes presently under execution in Samba constituency, out of which 54 are under Jal Jeevan Mission with an estimated cost of Rs 160.92 crore, against which an expenditure of Rs 880 crore 96 has been incurred till date, with completion of 36 schemes and remaining 18 schemes are at different stages of physical progress. Similarly, there are 22 schemes works taken up under CAPEX NABARD and estimated cost of Rs 21.82 crores, against which Rs 11.57 crores have been spent with the completion of 17 schemes. Works remaining are at different stages of physical progress. The schemes was present status of various water supply schemes under execution in Samba constituency provided in emergency rate. Sir, ये part B, the detail enclosed as necessary, इसमें डिटेल पूरी दे दी है। और जहाँ तक इनके part C का ताल्लुक है सर, there are 130 water supply schemes taken up under Jal Jeevan missions at an estimated cost of 391.57 crores, which an expenditure of
7.10 crores has been incurred till date. 83 schemes have been completed till date, and the remaining are at different stages of the physical progress, which shall also be completed within mission timelines, subject to release of required funds under CSS by Government of India and the corresponding UP component. Present status of these schemes provided in Annexure B. The status of the few wells build commissions is enclosed as Annexure C. ये स्कीम्स है सर, अगर मेरा सप्लीमेंट ये आप ये बड़ी डिटेल आपने स्कीम दी है। ऑनरेबल स्पीकर सर के ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने जो जवाब दिया है बड़ी डिटेल से जवाब दिया है, क्योंकि ये जल मिशन जो है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने रियासत जम्मू कश्मीर के लिए हर घर हर नल की बात की। उसमें बहुत सा काम हुआ है और कुछ काम बकाया है। मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसमें बहुत सी स्कीमें कंप्लीट 76 के करीब स्कीम्स हैं, और ये स्पेसिफिक मेरी कंस्टिट्यूंसी का है। इसमें 32 जो है वो कंप्लीटेड लिखी गई। तो माननीय मंत्री जी को मेरा ये सुझाव है कि आप इसमें फिर दोबारा कोशिश करें कि इनसे डिटेल जवाब लेने की, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि हर एक पॉइंट पे इस पर डिस्कशन किया जाए या स्पॉट विजिट करें आप कि वाकया ही ये स्कीमें कंप्लीट हुई हैं, तो उसके बाद क्या वजह है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। उसमें हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि अगर स्कीम में कहीं खिलाफ है तो आपके जो टेक्निकल लोग हैं या बाकी के ऑफिसर्स हैं उसमें काम करें, ताकि इसका फ़ायदा जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर के अवाम को मिल सके। उसके लिए आपको इसको सिस्टम को सही तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप बड़े कॉम्पिटेंट मिनिस्टर हैं, तो आपका काफ़ी तजर्बा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो स्कीमें आपको दी गई हैं कंप्लीट जो कही गई हैं वो कुछ अनकम्प्लीट हैं। उसके लिए आप कोई विजिट वहाँ रखिए और उसके लिए क्या मैकेनिज्म है कि उसको फिर दुरुस्त किया जाए। और तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, दूसरा सप्लीमेंट्री सर, कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब भी यहाँ तशरीफ रखते हैं। पहले अगर हमारे पास 40 ट्यूबवेल होते थे, आज 120 हो गए। इस स्कीम में ये था कि जो ट्यूबवेल लगेगा वहाँ पे आपके लोग भी लगेंगे और उसको काम को चलाएंगे। आज सिचुएशन ये है कि आपके पास चलाने वाला ट्यूबवेल कोई नहीं, तो पानी कहाँ से देंगे? नंबर 1। नंबर 2, जितनी भी मशीनरी है उस मशीनरी के लिए पैसा ही नहीं है सरकार के पास। तो मैं चाहता हूं कि आप ग्रांट्स में जो भी है कोई और इसमें कोई प्रावधान करें कि जिसमें से कुछ पैसा मिल सके, जो लोगों की लायबिलिटी है उसको खत्म किया जाए, ताकि आप मोटर्स और पंप को चलाने का काम करें। आज भी अगर हम 15 दिन लोगों को पीने का पानी नहीं दे सकते तो उसके लिए ये काम करने की जरूरत है। सवाल ही नहीं है, ये अलग सांबा का सवाल सर, ये सांबा का सवाल। ऑनरेबल साहब ने बड़े अच्छे तरीके से आपने कंस्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी की है। ये कलम्बिंग इस तरह नहीं होती है। अब समझे मेरी बात, कलम्बिंग इस तरह नहीं होती। अगर सांबा के बारे में आपका सेम क्वेश्चन तो मैं कलम करूंगा, आपका अपने इलाके के बारे में तो इसके पास नो बोलिए सर, ये मैं गुजारिश कर रहा था, ऑनरेबल एमएलए साहब ने बड़े अच्छे तरीके से अपनी कंस्टिट्यूंसी की नुमाइंदगी की है और बताया है, और डिटेल सरकार की तरफ से डिटेल जो है इनको दी गई है। मैं गुजारिश करूं सर, ये क्योंकि जैसे एमएलए साहब फरमा रहे थे कि ये जल जीवन मिशन जो है हर घर नल स्कीम के तहत प्रधानमंत्री साहब ने पूरे देश में इसको इंट्रोड्यूस करवाया। 2020 में यहाँ काम शुरू हुए थे और पुअर रिस्पांस मिला हमें टेंडिंग में, और जिसकी वजह से हम
ये काम जल्दी शुरू नहीं हो पाए। उसमें एक तो बड़ा रीज़न ये था कि ये कंपोजिट टेंडर्स लगने से टेंडर्स जो है वो अप्रोप्रिएट टेंडर्स टेंडरिंग इसकी ना हो सकी, और बाद में कंपोनेंट वाइज जब टेंडर लगाए गए तो उस पर डिफरेंट लेवल के कंट्रैक्टर्स जो हैं वो इस पर उन्होंने काम शुरू किया। जहाँ तक आपका बोरवेल जो आपके ड्राई हैं और आपने ये अप्रीहेंशन जाहिर किया कि स्कीमें जो हैं कंप्लीट नहीं और आगे आने वाले टाइम में मुश्किलात होगी। सर ये बात सही है क्योंकि वाटर टेबल जो है वो डाउन होने की वजह से काफ़ी जगहों पे जो है वो पानी की कमी आ गई है। हमने कंट्रैक्टर्स को डायरेक्शन दे दी है डिपार्टमेंट की तरफ से कि वो रीडील करेंगे और इनकी जितनी भी ज़रूरत है वो इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। स्कीम्स जो हैं जहाँ तक फंड्स की इन्होंने बात की है, 50% पैसा जो है जल जीवन मिशन में अभी रिलीज हुआ है, पैसे आने की तवक्को है इंशाल्लाह। पिछले दिनों सर एक वाटर कन्वेंशन, ऑल इंडिया वाटर कन्वेंशन में जो जल जीवन के मंत्री हैं उनके साथ हमारी मीटिंग भी रही। उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट के लोगों यहाँ से भेजा था, एक अच्छी मीटिंग रही है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में फंडिंग जो है इसमें आएगी और जो आपके काम चल रहे हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे, आपके एरिया में आएंगे। आपके साथ तो हमारा पुराना ताल्लुक है, वो हमारा अपना घर है, जरूर आएंगे और स्कीमें भी देखेंगे, चलाएंगे। शुक्रिया बहुत। मैं आपकी वजारत से मंत्री साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आप एक टूर रखिए वहाँ पर, कुछ चीज़ों पर वो जो बहुत जल्दी हो सकता है लेकिन डेलिबरेटली भी कुछ स्कीमें जो है वो पेंडिंग है, बिल्कुल कंप्लीटेड है, उनका पानी कहीं डाइवर्ट कर दिया गया है। मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, जब हम इस समाज में रहते थे, आपने देखा होगा, आप ठंडी खुई जाते हैं, वो औरत जैसे सारी उम्र लोगों को पानी पिलाने के लिए दे दी। हमने अरबों रुपया लगा के और लोग तरस रहे हैं पानी को, और वो लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो एक ट्राली पानी या वो टैंकी पानी डाल सके अपने घर में। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके बाद असेंबली के बाद एक मीटिंग वहाँ पर रखे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, और जितनी भी स्कीमें हमारी चल रही हैं एक एक करके उनका रिव्यू करके जल्दी से जल्दी उनको करें। सुझाव आपकी तरफ से। इरफान हफीज लोन एमएलए साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ भी दी है, मैं इंशाअल्लाह ताला आऊँगा भी, बात भी करेंगे। सर मैं एक हाउस की जानकारी के लिए ये बताऊं कि कंडी एरिया है, ये यहाँ पानी की कमी रहती है हमेशा, और एक जो इन्होंने कहा कि स्कीम में इतना पैसा देने के बावजूद, बोरवेल निकालने के बावजूद, क्योंकि वाटर टेबल नहीं है वहाँ पानी की कमी रहती है, तो मैंने सर जो मेरे पास फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी है, हम ये आर्टिफिशियल झील वगैरह कंडी एरिया से बनाएंगे और ये कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में ये कंपलसरी करेंगे सर। जहाँ भी ये वाटर कंजर्वेशन सोरिस पे जो दूसरे डिपार्टमेंट है, जैसे ट्राइबल डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, जो इनसे काम कराएंगे, हमारा फोकस रहेगा वाटर कंजर्वेशन पे, और ये आर्टिफिशियल डील जो डैम्स वगैरह और ये चेक डैम वगैरह बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि वाटर जो ग्राउंड वाटर है वो अच्छा उसका डिस्चार्ज बन सके, और इस पे हम इंशाल्लाह काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। तलैट वहां पर बड़ा छोटा डैम बनता है, उसमें स्पेस बड़ी कम है और पीछे पानी का स्टोर इतना हो सकता है कि वो पूरे जम्मू तक पानी पूरा हो सकता है, इतना पानी वहां आपकी बात आ गई। साहब उसे आपको अथराइज किया, पूछ लीजिए सर। AQ नंबर 870 सर, मिनिस्टर इंचार्ज जल शक्ति। सर इसका गलत तो करो सर, सेम है सर, मुझे एक पॉइंट पूछना है सर हमारे। सर AQ number 870. No sir. While most of the village had piped water supply through public stands posts, which were installed under the erstwhile program, the Jal Jeevan Mission targets providing functional household tape connections to every rural household, except single houses far away from villages habitation at 55 liters per capita per day. With quality and conforming to most of the schemes are therefore retrofitting schemes which are accounting for the existing infrastructure and augmentation to meet the Jal Jeevan Mission objective. Adequate drinking water supply is being provided in progress where the JJM scheme has been completed.
सर ट्रीट इट एज रेड, उसको सवाल पूछने दीजिए, वो पूछेंगे सर। आपका तो पहलगाम के बारे में है, क्या पूछ रहे हैं सर? मिनिस्टर तो ये थोड़ी नहीं, साहब का मिनिस्टर है, बिल्कुल पहलगाम का भी मिनिस्टर है सर। ये सवाल तो क्रीरी के बारे में है। आप पहलगाम की बात दिस इज नॉट जस्टिफाइड आंसर। नो ये थोड़ी फिर ये पूछे सवाल साहब सर पूछे, जहाँ आपका मन करते वहाँ आप बोल देते हैं सर। सर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से एरियाज हैं क्रीरी एंड अराउंड जहां जेजेएम की स्कीम्स अप्रूव हो गई हैं, उनसे वो कौन से एरियाज हैं जिनको अभी तक पानी नहीं मिल रहा है। एक सवाल ये है, जवाब उसका कुछ कहीं लार की बात तो कहीं लाहौर की बात, जवाब उसका आया ही नहीं है। जवाब आया है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कीम्स। हम ऑब्जेक्टिव कहाँ पूछ रहे हैं कि यू हैव टू गिव वाटर टू एवरी सोल, लेकिन खुद ही कहते हो जो दूर घर है उन तक नहीं पहुंचाई जा सकती। एक तो ये कंट्रडिक्शन। दूसरी, जिन एरियाज में ये एडमिट करते हैं कि नहीं है कोई भी स्कीम इधर अंडर जेजेएम और अंडर अदर एनी अदर कंपोनेंट, उसमें टाइमलाइन तो दे दें कि पानी देना है। नेशनल लेवल पे पॉलिसी है टू गिव ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी सोल, वेदर इट्स जेजेएम और वाटर सप्लाई इज एन एसेंशियल थिंग फॉर सस्टेनेंस। टाइमलाइन बिल्कुल कहीं नहीं दी है। उनने गाँव गिने हैं और गाँव अलग अलग मैं नहीं गिनूंगा, आई एम फेमिलियर विद दोज विलेजेस। मैं इनसे सिर्फ इतना सवाल पूछा जो डी और ई में है कि मेरा वो एक और क्वेश्चन कि देयर इज नो सच प्रपोजल। उन्होंने पूछा था कलांतरा में आप पानी की कोई स्कीम चला रहे हो, कोई प्रपोजल है, या वागूरा में, इनने कहा नो सच प्रपोजल। क्या ये कोई जवाब है? नो सच प्रपोजल। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में कहोगे गाँव विदाउट वाटर है, देयर इज नो प्रपोजल। सवाल यही है कि टाइम लाइन दे दे वागूरा और कलांतरा के बारे में, कोई स्कीम लागू होगी कि नहीं होगी। दूसरे जो नेग्लेक्टेड एरियाज हैं जो उन्होंने गिने हैं गाँव, उनको पानी कब मिलेगा। जेजेएम स्कीम्स क्वेश्चनेबल स्कीम्स है, मालूम है उनमें प्रॉब्लम्स है, बट एटलीस्ट दे शुड शो देयर हैंड्स क्लीन नाउ ऑनवर्ड्स। सर जेजेएम जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि 2019